Hello viewers, today we are going to discuss about Section B ICSE Mathematics Class 10 specimen paper released by Council for the year 2023-24 as I have already solved Section A for this paper in my previous video. Starting with Section B today, you need to attempt 4 questions out of 7 questions. Starting with question number 4, part 1, which is from matrix chapter. A is equal to 4 minus 4 minus 4, 4. And if A square is equal to PA, then find the value of this P. So for this, we need to calculate this A square. For A square, we need to write this A matrix 2 times and then multiply both of them. So 4 minus 4 minus 4, 4. Multiplication के लिए it will be easy if you put an arrow with your pencil on the matrix like this. First we need to take this row and then this column. First row and first column. So it is the answer 4 4 4 4 is 16 and plus minus minus plus 4 4 16. Here minus minus 16 and then this again minus 16. Minus 4, then we are coming to second row and then first column. Minus 4 into 4 minus 16. Then 4 minus 4 minus 16. Again here second row and second column. Minus 4 means plus 16 and then again plus 16. It means the matrix is 16 plus 16, 32, minus 32, minus 32 and 32. Now the answer is PA. It means A we need to write again. So 4 minus 4 minus 4 and 4. This is A. Now what can we take common from all these? 4 is inside, so 8 is outside. So 8 and then 4 minus 4, it means 8A. So comparing these two, this is our first equation and this is second equation. Comparing these two, the value of P comes out to be 8. So value of P is 8. In second part, solve the given equation and express your answer correct to 2 places of decimal. और इस क्वेश्चन के लिए आप मैथमेटिकल टेबल भी यूज कर सकते हैं, इट मीन स्क्वायर रूट टेबल. तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2. तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट d. वी नो द फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac. So what is b? It is minus 4 square minus 4, a is 1 and c is minus 2. So 4 square is 16 minus minus plus 4 to 8. It means 24. So now formula for x is minus b plus minus under root d upon 2a. So minus b is minus b. Minus means plus 4 हो जाएगा. Minus 4 already given है. So 4 plus minus d we have recently calculated under root 24 upon 2 and a is 1. So it means 4 plus minus. Now 24 we can also write as 6 into 4. 4 means 2 into 2. So 2 can come out from this under root. So 2 under root 6 upon 2. Again we can take common 2 plus minus under root 6 upon 2. So 2 cancels. Our question is 2 plus minus 2 under root 6. तो रिड्यूसिबल फॉर्म में हमारे पास ये आ गया है. अब अंडर रूट 6 के लिए आपको स्क्वायर रूट का टेबल यूज करना है. सो 2 प्लस अंडर रूट 6 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल यू कैन सी 2.449 एंड सेकेंड वैल्यू इज 2 माइनस 2.449. So जब हम इनको प्लस करेंगे तो 2 plus 2 is 4.449 and 2 minus 2 is 0.449. So अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? करेक्ट अप टू 2 places of decimal. तो 2 places of decimal मीन्स हमें इन दोनों को रिड्यूस करना है, यानी कि राउंड ऑफ करना है. तो आंसर इज 4.45 एंड हियर इट इज 0.45. सो 2 आंसर्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2 रूट्स आर 4.45 एंड 0.45. हाँ, इसमें ये माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन भी हमने साथ में लगाना है. एक प्लस का रूट है और एक माइनस का रूट आ जाएगा. 4.45 एंड माइनस 0.45. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, अगर आप अंडर रूट 24 को एज इट इज स्क्वायर रूट टेबल में देखते हैं तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा. अगर आप अंडर रूट 24 की वैल्यू स्क्वायर रूट टेबल में देख रहे हैं तो आपके पास है आंसर अंडर रूट 24 का 4.899 और डिवाइडेड बाय 2. तो आपके पास 4 प्लस 4 जब आप करेंगे तो 8.899 डिवाइडेड बाय 2 आएगा और माइनस करेंगे तो 0.899 डिवाइडेड बाय 2 आएगा. और जब उसको आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम 4.449 और यहाँ पर करेंगे तो 4.449. हाँ, इसमें फिर से ये कोई माइनस का नंबर है तो माइनस का साइन आपको सेम ये आंसर
एंड माइनस 0.45। तो आप चाहें तो उसको रिड्यूसिबल फॉर्म में थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप √24 की वैल्यू डायरेक्ट स्क्वायर रूट टेबल से देखकर 4.899 की वैल्यू फिल करेंगे तो भी आपके पास यही दोनों रूट्स आएंगी, क्योंकि उन्होंने करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का है तो 4.45 ही लिखना है। 4.449 लिखने पर भी आपका 1 मार्क वहीं पर रिड्यूस हो जाएगा। In part number 3, in the given diagram, triangle ABC is right angled at B and BDFE is rectangle. This BDFE is rectangle. AD is equal to 6 centimeter. This AD is 6 centimeter. And CE is equal to 4 centimeter. This is 4 centimeter. And BC total is 12. So we can calculate BE here. BE is equal to कितना हो जाएगा BE? 12 minus 4. So 12 minus 4 is 8 centimeter is the value of BE. Now start proving. First part is proof triangle ADF. It means this triangle ADF is similar to triangle FEC. These two triangles we need to prove similar. So we can write in triangle ADF and triangle FEC. FEC. क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये एंगल भी 90 है, अगर इधर ये 90 तो ये भी 90 है। इट मींस एंगल ADF इज इक्वल टू FEC is equal to 90 degree. This is given in the question. Now this FE is parallel to AB. FE is parallel to AB. क्यों पैरेलल है ये दोनों? FE और AB is parallel because they are perpendicular to the same line BC. आप देख रहे हैं FE भी परपेंडिकुलर है और AB भी परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है? BC पे। तो FE और AB आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो आपके पास ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम यहाँ पर लिखेंगे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। परपेंडिकुलर टू द लाइन, सेम लाइन इज BC, इसीलिए दोनों आपस में पैरेलल हैं। और जब पैरेलल हैं तो एंगल A के लिए हम लिख सकते हैं FAD इज इक्वल टू CFE। क्या बन गए ये दोनों? अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल है हमारे पास तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं FE एंड AB एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, दीज टू आर corresponding angles. So it means हमारे पास triangle ADF is similar to triangle FEC किस क्राइटेरिया से हैं? बाय AA क्राइटेरिया से, एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे। In second part, prove that triangle ADF is similar to ABC. अब यहाँ पर हम ये तो कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये वैल्यू 8 के इक्वल है, तो we can rub this. अब सेकेंड पार्ट के लिए आपको प्रूफ करना है दो ट्राइंगल्स। कौन कौन से हैं? ADF, इट मीन्स यही ट्राइंगल है, और एक पूरा ABC बड़ा ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल ABC, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें देखना है क्या क्या कॉमन है। तो आप देख लीजिए भाई, ABC में भी और ADF में भी एक A एंगल कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। इसके अलावा 90 डिग्री का एंगल ADF भी हमारे पास 90 डिग्री का ही है, और ABC भी 90 डिग्री का ही एंगल है। तो ABC दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, तो इसीलिए ट्राइंगल ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC अगेन बाय AA एक्सियम। तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर आ गए। अब थर्ड पार्ट के लिए हमने क्या प्रूव करना है? लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ FE। इसमें हमने ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, FE की कितनी लेंथ है। तो FE की लेंथ के लिए ऑब्वियसली हमारे को ट्राइंगल्स लेने, बहुत सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, बट कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं हम FE के लिए? तो FE के लिए हम नीचे वाली लाइन को ले सकते हैं, और नीचे वाली लाइन के लिए अभी हमने प्रूव किया है कि ADF ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है इसके, और हमने प्रूव किया ADF जो है वो पूरे ABC के सिमिलर है। इट मीन्स हम ऐसे लिख देंगे कि ट्राइंगल 1 to triangle 2, triangle 2 is similar to triangle 3, यानी कि ABC, it means 1 and 3 are similar। तो अगर वो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इट मीन्स ट्राइंगल किसके सिमिलर हम ले रहे हैं? FEC। ट्राइंगल FEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, क्योंकि 1 2 के है और 2 3 के है, तो इसलिए FEC और ABC भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल में आ जाएंगी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? यहाँ पर छोटे ट्राइंगल की हम कौन सी साइड ले सकते हैं? EF या FE, आप जैसे भी लिख सकते हैं EF। अगर मैं इसकी EF ले रही तो बड़े ट्राइंगल की कौन सी साइड आ जाएगी? नीचे AB।
और दूसरी साइड हमें कौन सी गिवन है छोटे ट्रायंगल के लिए, EC, यहाँ पर EC आ जाएगा, और नीचे बड़े ट्रायंगल की कौन सी साइड है, BC। तो इनकी वैल्यूज फिल करेंगे तो EF निकल जाएगा। EF को अभी हम EF ही लिखा रहने देंगे। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पूरी की पूरी AB की वैल्यू डायरेक्ट हमें नहीं दी गई है, तो AB की वैल्यू के लिए इधर 6 है और इधर हमने F ही लेना है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम 6 प्लस EF, चाहे तो आप इसको X सब्स्टिट्यूट करके भी ले सकते हैं, तो 6 प्लस EF, क्योंकि ये भी EF जितना है उतना ही DB। उन्होंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि दिस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की तो ऑपोजिट साइड्स इक्वली होंगी, और EC की वैल्यू कितनी है, 4 है, और नीचे BC की वैल्यू कितनी है, पूरी की पूरी 12 है, तो 4/12 मीन्स 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3EF इज इक्वल टू 6 प्लस EF। अब EF को ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो 2EF इज इक्वल टू 6, इट मीन्स EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 6/2, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर हमारे पास EF की वैल्यू आ जाएगी। अगर EF की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, और ये हमारा पार्ट 3 था, पार्ट 3 के बाद, C पार्ट के बाद अब हम D पार्ट पे आएंगे। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ADF और ABC को हमने पहले ही इक्वल प्रूव किया है, ये सिमिलर हैं। हमें ये क्राइटेरिया याद रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया किसके इक्वल होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनके स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल की और भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ सकती हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर हम डी पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। डी पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि सिमिलर हैं, और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो अब ADF की कौन सी साइड हमें ज्यादा पता है, ADF के लिए मुझे AD साइड पता है तो मैं AD का स्क्वायर ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ AD लूंगी तो मुझे यहाँ AB लेना पड़ेगा। अब तो हम AB को भी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ से हम आराम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के लिए AD का स्क्वायर और नीचे AB का स्क्वायर। तो अब AD की वैल्यू कितनी है 6 है, और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस जितनी EF की आई है। तो EF की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 3 है, तो ये 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। इट मीन 6 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 36 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। कि इस कॉमन टेबल पे कट रहा है 36 और 81, हमारे पास कटने के बाद कितना आ जाएगा 4/9। अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के लिए AD और AB नहीं लेना है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, DF भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको DF की भी वैल्यू पता है। DF की वैल्यू हमने अभी BA की कैलकुलेट की थी, और ये रेक्टेंगल है, अगर ये BE 8 है तो ये भी 8 ही है। तो अगर हम इसकी दूसरी साइड लेते हैं अपना क्रॉस चेक करने के लिए, आप DF का स्क्वायर भी ले सकते हैं। आपने DF का स्क्वायर अगर लिया तो नीचे आपको BC का स्क्वायर लेना है। तो DF का स्क्वायर कितना है आपके पास, DF की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको, जितनी ये 8 ने कैलकुलेट की थी वही होगी, तो इट मीन्स 8 का स्क्वायर। और BC कितना है आपके पास, BC कितना है 12 का स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर इज 64 एंड 12 स्क्वायर इज 144। अगर आप इसको कट करेंगे 64 और 144 को, तो भी आपके पास पहले 8/18 आएगा, यानी कि फिर आपके पास 4/9 ही आ जाएगा। तो 4/9 हमारे पास इनका एरिया आ रहा है, जो इनका रेशियो बता रहा है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो जो आपके पास है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर हमने लेना है। मैंने आपको दोनों साइड से एक बार आपको कैलकुलेट करके बता दिया, ताकि आप अपने ही आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। Coming to question number 5, part 1. Shown below is a table illustrating the monthly income distribution in a company with 100 employees. 100 employees में जो हमारे फ्रीक्वेंसी दी गई है, अगर हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 100, यानी कि सिग्मा F इज 100। मंथली इनकम हमारे को रुपीज 10,000 में दी गई है, बट हमें ऐसे करके दिया है कि 0 to 4, तो हमें थाउजेंड्स आगे नहीं लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पर 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 एंड 20 to 24। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे को 55 और ये सब दी हुई है। यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड द मीन मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय। आपको पता है मीन निकालने के 3 मेथड है, और हमें लास्ट वाला स्टेप डेविएशन मेथड निकालने के लिए दिया गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मीन निकालेंगे, इसका क्लास मार्क निकाल के क्लास इंटरवल से हम इसका मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो आप 0 + 4 करेंगे 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 2 आ गया आपके पास। ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। आप देखेंगे 4 का सबके अंदर डिफरेंस आई जा रहा है, तो 10 है, 14 है, 18 है और 22 है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी क्लास मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना होता है, इनका एज्यूम्ड मीन, कि मैं किसको मीन लेना चाहती हूँ। तो हम मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन
3 वैल्यूज ऊपर हैं, 3 वैल्यूज नीचे हैं, तो हम इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी वाला साइड ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे तो ऊपर फ्रीक्वेंसी 55 और 15 है और नीचे 8, 12, 4 यानी कि कम वाली फ्रीक्वेंसीज है। तो बेटर क्या रहेगा कि मैं यहाँ पर 10 को एज्यूम में ले लूँ, क्योंकि अगर मैं 14 को लूंगी तो मुझे फिर आंसर में बाद में माइनस करना पड़ेगा। तो अभी भी माइनस होगा शायद, लेकिन फिर भी वहां ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर माइनस होगा। वैसे आप ले सकते हैं, उससे आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम एज्यूम्ड मीन को यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं 10, जिसके बाद हमने डी निकालना है, यानी कि डेविएशन निकालनी है x माइनस ए। तो 2 minus 10 is -8, -4, 0, then 4, then 8 and then 12। ये हमारे पास आ गई डी, यानी कि डेविएशन कितनी कितनी आ रही है। अब स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको ये भी पता है कि हम टी भी निकालते हैं। टी निकालने के जितना क्लास मार्क है उसके साथ हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। कितना आ रहा है, 4 - 0 is 4, यानी कि आई की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो हम टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर डी की आई है उसको हम आई के साथ, जितना भी हमारे पास क्लास इंटरवल यहाँ गैप आ रहा है उसके साथ डिवाइड करेंगे। यानी -8 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी। इट मीन्स कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसके साथ करेंगे -1 आ जाएगा, 0 आएगा, 1, 2 और 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपकी वैल्यूज कितनी छोटी हो गई हैं। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको किसी कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम लास्ट में क्या निकालते हैं, f इंटू टी। अब कॉलम ध्यान से लेना है, f ये है और t ये है, यानी वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी। हमने सिर्फ इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, बीच का टेबल हमने सिर्फ इसको कैलकुलेट करने के लिए बनाया। 55 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -110। 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इस कॉलम को, तो -15 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इज 0, फिर 8 को 1 से करेंगे, 12 को 2 से करेंगे, 24 और 4 को 3 से करेंगे, 12। तो इस सिग्मा एफ टी की वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा एफ टी की वैल्यू माइनस वाला नंबर अलग करके प्लस, और फिर प्लस वाला को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ रहा है -81। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला, -81 के बाद हमारे पास ये टेबल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू, हमने एज्यूम्ड मीन भी लिया है, जिसको माइनस करते हैं उसको प्लस करना है हमने फॉर्मूला के अंदर। तो एज्यूम्ड मीन को प्लस करेंगे, सिग्मा एफ टी जो अभी हमने कैलकुलेट किया है उसको सिग्मा एफ के साथ डिवाइड करेंगे, और जिस आई से हमने डिवाइड किया था उस आई से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप डिविजन के फॉर्मूला में कुछ भी आपको ऐसे लर्न नहीं करना, सिर्फ समझना है। ए यहाँ पर हमने माइनस किया, प्लस कर रहे हैं फॉर्मूला में। एफ टी सिग्मा एफ टी, और सिग्मा एफ तो हम नॉर्मली करते ही हैं, और क्योंकि यहाँ हमने आई से डिवाइड किया, यहाँ आई से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा। एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था, 10 है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आई है सिग्मा एफ टी की, -81 है, तो माइनस का 81 हो जाएगा। और सिग्मा एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी गई है, 100 है। इनटू यहाँ पर आई कितना, हमने क्लास इंटरवल कितना लिया था, 4 है। तो अब इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, 10 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें, 4 4 8 4 30 100। तो 100 का मतलब हमने डेसिमल लगाना है। 100 जब भी डिनोमिनेटर में 100 होगा, कभी भी कटिंग में टाइम नहीं वेस्ट करना, डायरेक्टली उसके लिए डेसिमल लगा देना। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3.24। तो 10 माइनस 3.24 हो गई, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 6.76 हमारे पास आ जाएगा आपका मीन। तो 6.6, तो हमारा आंसर क्या है, ये मीन मंथली इनकम, मीन मंथली इनकम जो उन्होंने हमें निकालने के लिए दी है इस ₹6.76। हालांकि वो 10,000 में है, तो वो हमारे पास 10,000 में आएगा, बट हम मीन इसी वैल्यू में लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन ही दिया है कि सारा इनकम जो है वो ₹10,000 की टर्म्स में है। तो इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स के लिए आपको बस इतना सा करना है। और अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, आपके पास पेपर में टाइम है, तो आप डायरेक्टली अपना डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करेंगे, आपके पास f है, आपने x तो निकालना ही, आप fx को मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप fx को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि अगर हम डायरेक्टली f को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। 6 को 4 से करेंगे, माइनस का 24 आएगा। इसी तरह से 15 को 6 से करना है, आपने ये वाला टेबल ले रहे थे हम, 15 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 6 को 10 से करेंगे, कितना आ गया, 60 आ गया। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 112 आ जाएगी 14 को 4 से करने पे। देन नेक्स्ट इज 216 एंड देन नेक्स्ट इज 88। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 676। अब ये हमें
सिग्मा एफ एक्स है और मुझे सिग्मा एफ के साथ सिर्फ डिवाइड करना है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 676 है और सिग्मा एफ की वैल्यू बहुत सिंपल सी 100 दी है, तो 6.76 मेरे पास ये मीन आ जाएगा। मीन आप किसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे, मीन का आंसर सेम होता है। क्योंकि उन्होंने स्टेप डिविजन मेथड मांगा है तो हम ये पूरा उनको शो करेंगे। आपके पास अगर लास्ट में टाइम बचता है तो आप क्रॉस चेकिंग ऐसे करके कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो टर्म्स दी गई हैं वो इजी वाली हैं, बहुत लंबा मेथड कैलकुलेशन का नहीं है इसके अंदर। In second part, the following bill shows the GST rate and marked price of article. विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स का है ये, सीरियल नंबर हमें दिया गया, आइटम नंबर दिया गया है, एलईडी टीवी सेट है, उसका मार्क प्राइस 12,000 है, क्वांटिटी सिर्फ एक खरीदी गई है, जीएसटी रेट 28% है। तो मैं टोटल कैलकुलेट करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेपरेटली कैलकुलेट करना है और बाद में टोटल अमाउंट पेड के लिए मार्क प्राइस को उसके अंदर प्लस भी करना है। और MP4 प्लेयर है वो 5,000 का है, क्वांटिटी एक ही खरीदी गई है, 18% है। इसमें थोड़ा सा बस कैलकुलेशन होता है और आपको राइट मेथड पता होना चाहिए। आपको पता है कि 28% जीएसटी के रेट दिए थे, इसमें सीजीएसटी कितना हो जाएगा, उसका हाफ यानी कि 14%। तो 14/100 इंटू सीजीएसटी का है क्या, आइटम क्या है 12,000 का है, ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 14 × 12 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1680। आप यहाँ पर भी लिखेंगे 1680 क्योंकि सीजीएसटी भी उतना ही है, और एसजीएसटी के लिए दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप रुपीज लिख के डायरेक्टली सीजीएसटी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर रेट हमें 18% दी गई यानी कि 9 होगा, तो 9/100 इंटू 5,000 लेंगे, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी तो 450 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 450 आएगा, यहाँ पर भी रुपीज 450 आएगा। तो टोटल अमाउंट पेड के लिए अभी ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, उसमें ये भी है, मार्क प्राइस भी है। टोटल अमाउंट पेड के लिए हम 12,000 लेंगे प्लस 1680 को 2 बार प्लस करेंगे 1680। इसी तरह से यहाँ पर 5,000 लेंगे और 5,000 में हम 450 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे और फिर हम टोटल कैलकुलेशन करके शो करेंगे। तो ऊपर हमारी आइटम आ रहा है, रेट आ रहा है 15,360 रुपीज और MP4 प्लेयर का हमारे पास आ रहा है 5,900। अब टोटल अमाउंट पेड कितना होगा, टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल टू इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट पेड आ जाएगा। तो कितना आ रहा है आपके पास, ये 21,260 रुपीज। तो ये हमारा टोटल अमाउंट है जो हमने देना है अगर जीएसटी की रेट्स हमारी यही रहती हैं तो। इन पार्ट 3, इन द गिवन फिगर, O is the center of the circle and AB is the tangent. This AB, this is A and this is B. This AB is the tangent. And tangent to the circle at B. B point पे touch कर रहा है. If angle PQB is 55, PQB, it means ये triangle यहाँ पर बन रहा है, PQB यहाँ पर ये angle 55 का है. Now find the value of angles XYZ. हमने find करना है and prove that RB is parallel to PQ. तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पर ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, PBQ। इन ट्राइंगल PBQ क्या चीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, उसने कहा PB जो है O सेंटर है, सेंटर की लाइन यहाँ पर टच करिए, इट मींस ये OB रेडियस है। अगर OB रेडियस है और AB टेंजेंट है तो हमें पता है ना यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इस ट्राइंगल के अंदर OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है यहाँ पर और वो रेडियस के साथ टच कर रही है, ये पॉइंट आप लिख देंगे। सो नाउ इन ट्राइंगल PBQ हमें 90 डिग्री का एंगल पता है, हमें 55 डिग्री का एंगल पता है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस एंगल P। तो इसको लिखने के लिए हम PBQ लिख देंगे, BPQ एंगल BPQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से एक तो ये वाला एंगल 90 का माइनस कर देंगे, दूसरा 55, तो 90 प्लस 55 करको हम माइनस इसके से करेंगे तो 180 में से दोनों को माइनस किया आपने, ये 145 आ गया, इट मींस 35 डिग्री का एंगल आ गया। यानी ये एंगल हमारे पास 35 डिग्री का आ गया है, PBQ। अब हमारे पास वैल्यू तो हमने XYZ की फाइंड करनी थी, लेकिन हमें ये वैल्यू भी वहां पर काम आएगी। तो अब कहां पर ये वैल्यू काम आएगी, अब आप देखिए यहाँ पर कौन सी आर्क एंगल बना रही है, ये आर्क, पहले तो आपके पास ये SB आर्क को देखना जरूरी है। SB आर्क है जो P पर मीट कर रही है और यही SB आर्क है जो सेंटर पर मीट कर रही है। तो अगर ये सेंटर पर मीट कर रही है तो ये एंगल क्या बना रही है, SOB एंगल। SOB कितना होता है सेंटर पे बनने वाला एंगल, ट्वाइस होता है किसका, SPB का।
SPB। अब SPB तो अभी हमने कैलकुलेट किया 35 है, तो 2 इंटू 35, इट मीन्स ये एंगल जो सेंटर पे बन रहा है ये कितना का हो जाएगा, 70 डिग्री का, यानी वाई एंगल मेरे पास 70 डिग्री का आ जाएगा। क्या लिखोगे आप रीजन, यहाँ पर कौन सा रीजन लिखना है आपने, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क BS एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क BS एट द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, यानी कि B पॉइंट पे या एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर 70 डिग्री का वाई हमारे पास ऑलरेडी आ गया। अब एंगल इन द सेम सेगमेंट, आप SB देखिए, SB जो आर्क बना रही है वही P पॉइंट पे मीट कर रही है, SB R की जो है वो R पॉइंट पे मीट करे, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर SRB की वैल्यू या BRS की वैल्यू, तो BRS की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जितनी BPS की वैल्यू है, तो BPS की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 35 है, तो इट मीन्स ये वैल्यू भी 35 होगी, और 35 वैल्यू की यहाँ पर एंगल का नाम है x डिग्री, इट मीन्स x का आंसर भी हमारे पास 35 डिग्री ही आएगा, इट मीन्स x का वैल्यू भी 35 डिग्री आ गया। अब बचा है z, तो z के लिए अब आपको यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर सर्कल है, टेंजेंट है और ये कॉर्ड है आपके पास, ये कॉर्ड SB जो है ये कॉर्ड है, यहाँ से जा रही है, तो कॉर्ड अगर सर्कल के ऊपर कोई भी एंगल बनाती है अपोजिट साइड में, तो टेंजेंट के साथ वो एंगल उतना ही होता है, इट मीन्स ये कॉर्ड BS टेंजेंट AB के साथ जो एंगल बना रही है वो Z है, और यही कॉर्ड सर्कल के ऊपर जो एंगल बना रही है वो x है, यानी कि 35 डिग्री है, तो इट मीन्स ये एंगल भी हमारे पास 35 डिग्री आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल z इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ऑल्टरनेट सेगमेंट। और आप चाहें तो थोड़ा सा क्लियर कर दें कि कॉर्ड हमने BS को लिया है, BS कॉर्ड R पे एंगल बना रही है, वही BS कॉर्ड टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है, और ये एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट होते हैं, इसलिए ये एंगल भी 35 होगा, तो Z भी हमारे पास 35 डिग्री का आ जाएगा। अब B पार्ट के लिए उसने कहा था प्रूव दैट RB इज पैरेलल टू PQ। RB हमारी ये लाइन है RB, और PQ हमारे पास ये लाइन है PQ, ये पूरी लाइन जो हमारे पास PQ है। अब दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, अगर उनके बीच में सेम एंगल बन रहा होता है, तो दो लाइंस पैरेलल हैं और उनके बीच में एंगल यहाँ पर किस किस का बन रहा है, दो लाइंस पैरेलल ये और ये हैं। अब इनके लिए हम पैरेलल कैसे प्रूव, मतलब हमने ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको एक ट्रांसवर्सल मान लेती हूँ और ये दो पैरेलल लाइंस है, तो इसमें सेम एंगल बनने चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर x डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी x डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो यहाँ पर x डिग्री मीन्स 35 है, तो ये एंगल 35 बनेगा। क्यों बनेगा 35 ये, अब यहाँ ध्यान से देखिए, O रेडियस है, O रेडियस उस तरफ अगर 35 का एंगल बना रहा है उसी लाइन के साथ, तो इस ट्राइंगल में हम ट्राइंगल ले सकते हैं POS, इन ट्राइंगल POS के अंदर आपके पास एक तरफ 35 का एंगल है और रेडियस दोनों इक्वल है, तो इट मींस यहाँ पर भी 35 का एंगल बनेगा, यानी हम ऐसे लिख देंगे OSP इज इक्वल टू 35। अब OSP भी 35 है और यहाँ पर x की वैल्यू भी 35 है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल क्यों हैं, दो लाइंस पैरेलल क्यों होती हैं, क्योंकि जब एक ट्रांसवर्सल होती है और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल बन रहे होते हैं तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें क्लियर करके लिख देंगे कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल 35 देयरफॉर RB इज पैरेलल टू PQ। यही हमने प्रूव करना था कि RB इज पैरेलल टू PQ, क्योंकि यहाँ पर एंगल इन द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और इक्वल किसके हैं, 35 डिग्री के हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करके लिख देंगे। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, XYZ तीनों की वैल्यू एक मार्क की है, और यहाँ पर पैरेलल प्रूफ करने का आपका एक और मार्क है, तभी ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स पूरे दिला पाएगा। आप रीजन के साथ, प्रॉपर रीजन के साथ हर पॉइंट में क्लैरिटी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, Part 1 from GP chapter, Geometric Progression. There are 3 positive numbers in GP such that their product is 3375. तो आपके पास प्रोडक्ट गिवन है। अब आपको पता है जीपी में हम जब भी नंबर्स को लेते हैं तो हाउ डू वी सिलेक्ट देम, हमने पहला नंबर लिया A, सेकेंड नंबर इज AR एंड थर्ड इज AR स्क्वायर। ये नंबर्स अगर हम इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कि A को AR से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और AR स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट गिवन है 3375 है। तो A यानी कि 3 बार A आया, जब 3 बार A आएगा तो इट मीन्स A क्यूब हो गया, और R स्क्वायर भी हमारे पास R क्यूब हो गया, और इसकी वैल्यू 3375 है। अब 3375 को हम कैसे पता लगाएंगे, वो किसका क्यूब हो सकता है, के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो हमने पहले 5 से किया, 5 से 30, फिर यहाँ पर करा हमने 37, 5
37, 5 7 35, 5 5 25, 5 आ गया। फिर से दोबारा आपके पास 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, फिर 5 से किया तो 5 2 10, 7 और 27 आपको पता ही है कि 3 का क्यूब होता है। तो इट मीन्स ये मेरे पास जो नंबर आया है ये 5 × 3 यानी कि 15 का क्यूब है। यहाँ पर 15 का क्यूब है, तो अब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं AR का क्यूब है और इस तरफ मेरे पास 15 का क्यूब है। इट मीन्स अगर मैं क्यूब रूट लूंगी तो AR की वैल्यू मेरे पास 15 आ जाएगी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है जो हमें बाद में काम में आएगी। तो अभी हम AR की वैल्यू 15 यहाँ पर कैलकुलेट करके रख लेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए उसने बोला है अभी हमारे पास प्रोडक्ट इतना था, अभी इक्वेशंस आएंगी क्योंकि दोनों ही नंबर अभी अननोन है, A भी नहीं पता R भी नहीं पता, तो हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। सेकेंड पार्ट जो इसका B दिया गया है उसमें द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर, फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर इनका प्रोडक्ट यानी कि A और AR का प्रोडक्ट एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा AR और AR स्क्वायर, इन दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें आंसर यहाँ पर मिल रहा है 750। ये कितना हो जाएगा यहाँ से A स्क्वायर R प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बार A है और 3 बार R है, तो A स्क्वायर R क्यूब इज इक्वल टू 750। यहाँ पर आपको A कॉमन दिखाई ही दे रहा है तो हम A को कॉमन भी लेकर नीचे जाके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम R भी कॉमन आपको दिखाई दे रहा है तो A स्क्वायर R भी हम कॉमन ले सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ AR की वैल्यू को फिल भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी AR की वैल्यू 15 आ चुकी है। तो आप अगर AR की वैल्यू को 15 फिल करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा लेकिन साथ में A रह जाएगा, और यहाँ AR की वैल्यू को फिल करूंगी तो मेरे पास 15 आ जाएगा लेकिन साथ में एक A रह जाएगा और एक R स्क्वायर रह जाएगा, यानी दोनों में से मैं 15 को कॉमन ले सकती हूँ। अंदर मेरे पास A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 750 आ जाएगा। तो A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे जाके डिवाइड करेंगे 750 को 15 के साथ, तो आपके पास कितना आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 15, इट मीन्स 50। तो ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को जीपी की एक प्रॉपर्टी को यूज करना है जहां पर मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म होता है। क्या कह रही हूं मैं आपको, मिडिल टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म यहाँ पर क्या है AR, तो AR का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जीपी की प्रॉपर्टी है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज A एंड देन AR स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा A स्क्वायर R स्क्वायर और यहाँ पर ये AR और इसका स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे रहा है, मैं स्क्वायर जैसे मर्जी कर सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर आप। अब मुझे इसमें से एक वैल्यू निकालनी है जिसको मुझे फिल करना है। यहाँ पर AR की वैल्यू 15 है, इसमें से इन दोनों में से अगर मैं A को कॉमन ले लेती हूँ, इस प्रॉपर्टी को ना भी यूज करें, A को कॉमन ले लें यहाँ से, मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा A आ गया और AR स्क्वायर आ गया। तो A और AR स्क्वायर में से मुझे एक वैल्यू को अलग करना है, चाहे तो मैं यहाँ पर कर लूं AR का स्क्वायर। अब AR का स्क्वायर, मुझे AR की वैल्यू तो पता ही है AR स्क्वायर, AR की वैल्यू 15 है, इट मीन्स 15 का स्क्वायर इट मीन्स 225। तो AR के स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ रही है 225। तो इसको अगर मैं खोल के लिखती हूँ तो कितना हो जाएगा, एक A अलग और एक AR स्क्वायर इज इक्वल टू 225। लिखा यही है A स्क्वायर R स्क्वायर, 225 के इक्वल हो गया। तो AR स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, मैं A के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। तो AR स्क्वायर इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय A। अब अगर आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो यहाँ AR स्क्वायर की वैल्यू 225 अपॉन A है, जिसको हम थर्ड इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन बना देते हैं और इस वैल्यू को हम इसमें फिल कर देंगे। तो A प्लस AR स्क्वायर की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू फिल करने जा रही हूँ। A मेरे पास ऑलरेडी है, AR स्क्वायर जो नंबर है इस जगह पर हम 225 अपॉन A फिल कर देंगे इज इक्वल टू 50 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम A आएगा, A स्क्वायर आ गया प्लस 225 आ गया इज इक्वल टू 50 आ गया। तो A स्क्वायर प्लस 225 इज इक्वल टू 50 है। इसको कराएंगे तो A स्क्वायर माइनस 50A प्लस 225 इज इक्वल टू 0, यानी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म करूँ 225 को स्प्लिट करेंगे तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 50A है और 225 लाना है। तो 225 को स्प्लिट करने के लिए अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो 5, 5 और 9 आ रहा है, 5, 5 और 9 से मेरे पास 225 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो 50 बनाना है। तो 50 बनाने के लिए 9 5 45 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A स्क्वायर माइनस 45A माइनस A प्लस
45 है माइनस 5a प्लस 2 25 इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना जानते ही हैं। a कॉमन लेंगे, a माइनस 45 माइनस 5 कॉमन लेंगे, a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यानी मेरे पास a के दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 5 और एक आ रहा है 45। अब यहाँ पर a का एक आंसर 5 आ रहा है और एक आंसर आ रहा है 45। तो उससे मेरे पास नंबर्स क्या क्या बनेंगे? अगर मैंने a को 5 लिया तो मेरे पास a इंटू आर, अभी मुझे r भी कैलकुलेट करना है, तो r तो आप डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो यहाँ पर फिल कर दें। AR वाला सबसे इजी मेथड है, AR इज इक्वल टू 15 है। a की वैल्यू को अगर मैं 5 लेती हूँ तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो a 5 है और r की वैल्यू 3 है, तो पहला नंबर क्या हो गया 5, दूसरा क्या हो जाएगा a इंटू आर यानी 5 इंटू 3 15, और तीसरा क्या हो जाएगा r का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 यानी 45। तो ये तीन नंबर आ रहे हैं 5, 15 और 45। 3 नंबर आ गए 10। अगर मैं a का 45 भी मान लेती हूँ तो a का अगर मैंने 45 माना तो r की वैल्यू 15/45 यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तब उस केस में मेरा a 45 हो जाएगा, तो a r कितना हो जाएगा 45/3 यानी कि 9 हो जाएगा। 45 अपॉन r की वैल्यू कितनी ली हमने 1/5, a 45 है, 45 इंटू डिवाइड बाय 3 यानी कि 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 आ गया, नेक्स्ट नंबर मेरे पास 15 आ जाएगा, और ऐसे जब उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर हमारे पास जो 3 नंबर आ रहे हैं वो है 5, 15 और 45। ये तीन नंबर हैं जो जीपी के अंदर हैं, जो उन्होंने हमारे से मांगा था। फाइंड द नंबर्स, तो 3 नंबर्स आर 5, 15 एंड 45। मैंने दोनों से आपको इसलिए शो किया ताकि आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सके, लेकिन अगर वहां पर आप टाइम बाउंड हैं तो आप सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट करिए। एक ए का 5 लिया हमने, दोनों तरफ से हमारे पास सेम ही आंसर आए। In part 2, the table given below shows the ages of the members of society। 25 to 35 एज है, 35 to 45 से लेकर 85 तक का है, और इधर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो है वो 0, 5, 32, 69 अलग अलग वैल्यूज हैं। यूज ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर अलॉन्ग 1 एक्सिस। तो आप 1 एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स लेंगे, और तो हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया 2 सेंटीमीटर 10 ईयर। तो हमारा ये 2 सेंटीमीटर का वहां पर एक स्क्वायर जो बड़ा वाला होता है वो लेना है आपने, और ये हमारा एक हो जाएगा। बीच में किंग दिखा देंगे क्योंकि हम 0 से ग्राफ नहीं स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, और यहाँ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मेंबर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो वो हमने इधर ले लिया वाई एक्सिस पे। यहाँ पर लिखना है 2 सेंटीमीटर 10 ईयर ऑन एक्स एक्सिस, और सिमिलरली 2 सेंटीमीटर 10 मेंबर ऑन वाई एक्सिस। ये जरूर लिखना है आपने, इसका भी हमारे को 1 मार्क मिलता है। 25 to 35, अब हमारे पास देखना है हमने अलग अलग वैल्यू कितनी है। 25 से 35 में हमारे को वैल्यू दी गई है 5, तो 0 और 10 के बीच की जो मिडिल वैल्यू आएगी वहां तक का आपने ग्राफ लेना है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, इतना सा आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 32, डायरेक्टली 32, तो 30 और 40 के बीच में 35 होगा, और उससे नीचे आप आराम से वैल्यूज कैलकुलेट करते हुए आएंगे, आपके पास यहाँ पर 32 आ जाएगा। और बार्स की विड्थ जो है वो आपको पता है स्टैंडर्ड रहती है, आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो आपका रहेगा ही 69। नाउ 69 आपको पता ही है 70 और 60 से बिल्कुल सिर्फ एक डिजिट नीचे 70 से, तो 69 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। 69 से आप इस तरफ आइए और फिर आपको 55 तक पूरा नीचे लेकर जाना है। ये हमारा आई थिंक लॉन्गेस्ट बार है, नहीं इससे लॉन्गेस्ट भी है। 55 to 65 हमारे पास 80 है पूरा, ये 69 था, अब हमने पूरा 80 लेना है। तो पूरा 80 तक जाने के लिए हमें 80 के अलॉन्ग यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेनी है, और इस रेक्टेंगल को भी हमने पूरा नीचे 65 तक लेके जाना है। नेक्स्ट रेक्टेंगल हमारा आ रहा है 61 तक, तो 60 से थोड़ा सा बस एक डिजिट ऊपर आपने जाना है, एक छोटा सा आप लाइन ऊपर लेंगे 60 से, तो 61 आ जाएगा, और वो आपने 75 तक नीचे उसको एक्सटेंड करना है। 75 to 85 में 13 है, 13 आपका 10 और 20 के जो 15, और 15 से नीचे आपके पास 13 आएगा, तो ये आपकी छोटी ही बार है, छोटा सा ही रेक्टेंगल बनेगा आपके पास, ये 85 वाला रेक्टेंगल आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन पहला पूछा गया ड्रॉ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हिस्टोग्राम के लिए ये जरूर याद रखना है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, ये चीजें मेंशन करेंगे आपकी क्या क्या दिया गया है हमें। उसके अलावा हिस्टोग्राम में आपने सेकंड पार्ट में एस्टिमेट द मोडाल एज ऑफ द मेंबर्स। मोडाल एज ऑफ द मेंबर्स है कितनी, यहाँ पर हो जाएगी आपके पास, बताइए। जब से जो हाईएस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट हमारे पास ये वाला है, हमने एक्स एक्सिस पे रीड करनी है, तो मॉडल एज हमारे पास आ जाएगी 55 to 65 ईयर्स। ये हमारे बी पार्ट का आंसर हो जाएगा, जिसमें हमने मॉडल एज कैलकुलेट करनी है। मॉड इसने कैलकुलेट करने को दिया ही नहीं है, हिस्टोग्राम सिर्फ दिया गया था।
लेकिन अगर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास हाईएस्ट बार जो आ रही है, इससे आप रेक्टेंगल से अपोजिट डायगोनल ऐसे मीट करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने इसको ए बी और इसको सी डी ले लिया, तो आप कैसे भी ले सकते हैं। हमने ए सी एक डायगोनल ले ली और एक बी डी डायगोनल ले ली, जहां पर ये के पॉइंट मीट कर रहे हैं, इससे स्ट्रेट आप नीचे आ जाएंगे तो आपके पास इस डाटा का मॉड भी आ जाएगा। तो 55 और 65 के बीच में यहाँ पर आपके पास मॉड आ रहा है। इन पार्ट 3, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and the radius of the cylindrical part are 7 meter, height is 7 meter and also radius is also 7 meter and total height of the tent वो भी हमारे को दिया हुआ है, total height is 14. Find the quantity of air contained inside the tent. Now we know this total is 14 and this is 7, so we can easily calculate that the height of the cone is also 7 meter. 14 minus 7. Now quantity of air contained inside the tent is first part. So quantity of air contained is the volume of air in the tent. The volume of air in tent is equal to volume of cylinder, मतलब cylindrical part, volume of cylinder plus volume of cone. टोटल टेंट की वॉल्यूम दोनों को प्लस करके आ जाएगी। अब सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है, इट इज पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज ऑल्सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस इज सेम इन बोथ केसेस एंड by chance height is also same, 7 and 7, so we can take the same symbol. If the height or radius are different, then one is smaller and other is capital R we need to take there. Now because all are same, so we can take common also. So pi r square h we can take common. So 1 plus 1/3. It means 4/3 पाई आर स्क्वायर एच हम यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं और पाई की वैल्यू भी हमें दी गई है क्वेश्चन में, इट इज 22/7. आर स्क्वायर इट मीन्स रेडियस 7 into 7 एंड एच इज ऑल्सो 7. सो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। कैलकुलेशन का हमारे पास यहाँ पर 7 7 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7, ये आ जाएगा 88 इंटू 7 7 49 और बाद में आप इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 88 इंटू 49 का 4312 एंड डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो 1437.33 और क्योंकि सारी डायमेंशंस हमारे को मीटर में दी गई हैं और ये वॉल्यूम है तो यूनिट में हमें मीटर क्यूब जरूर लगाना है। तो ये हो गई टोटल वॉल्यूम। जो क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेंट हम बेसिकली हमने ये कैलकुलेट क्या किया है, फर्स्ट पार्ट इट मींस क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेन्ड इन द टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट और उसके लिए हमने दोनों को प्लस कर दिया। इन बी पार्ट रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ एयर इनसाइड द टेंट। अब क्वांटिटी ऑफ एयर इनसाइड द टेंट अगर हमने पूरी कैलकुलेट की है तो कॉमन लेने के पास वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसने बोला है रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो आपको पता है कि दोनों केसेस में हमें वॉल्यूम ऑफ टेंट या फिर यूं कहें कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ टेंट की हमने अभी कैलकुलेट की है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच है और स्फीयर की क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर आर और एच आपको पता है दोनों 7 7 ही है। बाई चांस है आपका आर भी और एच भी दोनों 7 है तो आप अगर इसको लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर ये 4/3 पाई रेडियस अगर हम क्योंकि स्फीयर का ले रहे हैं तो आप कैपिटल आर ले सकते हैं क्योंकि हमें शो करना है कि ये सेपरेट है। तो 4/3 पाई आर क्यूब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सिर्फ कंपेयर भी करेंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से रेडियस की डायमेंशन कि हमारा कैपिटल आर भी उतना ही है जितना हमारा स्मॉल आर है क्योंकि यहाँ पर से भी अगर आप देखेंगे तो 7 7 7 3 टाइम्स 7 है, 7 का क्यूब आ गया तो 4/3 पाई आर क्यूब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 7 मीटर।